इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है उस मजलूम बच्ची जो 13 साल लड़की है उसकी वालदा के साथ, जिसको दाता दरबार से वरगला कर अगवा किया गया और 6 महीने तक उसको सिंध में रखा गया। वहाँ पर मजीद उसको मुख्तलिफ जगहों पर बेचा जाता रहा। बात करते हैं उस लड़की की वालदा से कि कब इनको पता चला, क्या हुआ था, बच्ची घर से क्यों गई और क्या सारा मामला हुआ था। सब तो पहले तो शुक्र है कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੁਪਈਆ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬੈਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਲਿਸ਼ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੀ ਕੋ। ਤੇ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦੀਲ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਈ ਗਈ ਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇਟਾਂ ਚਪੂਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਦੀਲ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਈਰਮ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਤਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਨਦੀਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਮ ਉਮਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀ ਨਦੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਤਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਲਤੀਫਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ तू 25 लाख रुपया दो। एक 13 साल बच्ची को 6 महीने तक अगवा किए रखा एक बहुत ही खतरनाक गैंग ने, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा के हदायत पर एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफीक साहब और उनकी टीम ने कार्रवाई की और उस बच्ची को खैरियत से बाज़ाब करवा लिया। बात हम करते हैं कि मामला था क्या, कौन लोग थे जिन्होंने इस बच्ची को अगवा किया और किस तरह से फिर पुलिस कामयाब हुई है। जी शाहिद साहब बताइएगा ये सारा मामला था क्या और किस तरह आप असल मुलज़मान तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जून का ये वाक़या अलिशबा बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, ये घर से अचानक लापता हो जाती है। उसकी वालदा शमीमी भी थाने को अप्रोच करती है, कंप्लेंट दर्ज करवाती है, जिस पे हम फौरी FIR दर्ज कर देते हैं। उसके बाद हम उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। चूँकि कोई भी मौके का कोई ऐसी विटनेस मौजूद नहीं था जिसने देखा हो कि बच्ची फलां के साथ जा रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मुल्ज़मान को डिटेक्ट करना, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, कैमरा चेक किए, CCTV चेक किए, लोगों से पूछा, मसाजिद में ऐलान कराया गया, लेकिन कोई समझ नहीं आई। बेसिकली बच्ची इधर से चली जाती है दाता साहब जाने के बाद उधर से एक गिरोह है जो बेसिकली बच्चियाँ इधर से वर्गला के फसला के सिद्ध ले जाते, वहाँ जाके भेज देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको ट्रेस करते करते इधर से हमने सरवर, इरम, अल्ताफ 7-8 अक्यूज। अच्छा, ये गैंग का पूरा गैंग में सारे मुलव्वस थे जो पंजाब से रिलेटेड। इनका काम था कि कम उम्र लड़कियां, इनका काम था कम उम्र कम सिन बच्चियां जो घर से लड़ झगड़ कर किसी दरबार पे, किसी पार्क पे, कहीं आगे पीछे चले जाते, उनको वर्गला लेते थे और उनको पकड़ने के बाद फौरन सिंध 7 शरीफ मोरो एक लतीफा नाम की औरत है। अच्छा। जिसकी उम्र तकरीबन 55-60 साल है। ठीक है। तो उसको ये फरोख्त कर देते थे।
ये लड़की ने बताया नहीं दाता गेहूं किसी ने बुलाया ये था उसको? उसने दादा साहब बेसिकली इधर से घर से लड़ झगड़ के गई। ठीक है, ओके। ये दादा साहब गई वैसे उस ग्रोह के अंदर चढ़ गई, इस तरह और भी कई लड़कियां इस ग्रोह के अंदर चढ़ चढ़ी जाती हैं। हैं। तो ये जितने करैक्टर थे 7-8, जिनमें एक अनिला है, एक इरम है, एक अल्ताफ है, सरवर की बीवी है, परवीन है, ये 8-10 लोग हैं जिनका सिर्फ धंधा ये है। ये लड़कियां उनको पकड़ते हैं, उनको बरगलाते हैं और ले जाते हैं सिंध, और आगे जाके ये सारे लतीफा को भेजते हैं। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने वो यहाँ से बच्ची को ले गए सिंध ले गए? वो सिंध चले गए। इन्होंने सेम डे दादा साहब से बच्ची लेके सिंध ले गए। सिंध जाकर लतीफा को हैंड ओवर की। लतीफा ने आगे उसको फर्दर सेल आउट किया 50,000 में, लाख में, 2 में, 3 में। ये 6 माह से सेल आउट हो गई। तो ये करते यही जिस्म फरोशी का काम? धंधा है जिस्म फरोशी का और बच्चियों को सेल करने का। ये इनका तरीका वारदात है। गैंग के बारे में बताएं कि क्या मजीद क्या क्या इनकी इंकशाफात हुए इनके हवाले से? ये कौन औरत है, कि किस तरह से मामलात करती है, और ये जो नेटवर्क है इसका जिस्म फरोशी का, वो कैसे चला रही थी ये? असल में इसमें बहुत सारा जिस्म फरोशी की है जो अड्डा है, जो औरतें चलाती हैं। उनमें एक अनिला है जो लाहौर से रिलेटेड है। लतीफ़ा जो है वो सिंध में चलाती है। इस तरह का कुछ और भी है करैक्टर। जीरम है, ये बेसिकली जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं। ये लड़कियों को वर्गलाते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इनका ज़्यादातर फोकस होता है, दरबारों पे और पार्कों पे, जहाँ लावारस बच्चियाँ लड़ झगड़ के कुछ माशरती तौर पे चली जाती हैं। ये फिर उनको हमदर्दी शो करके अपने साथ ले जाती हैं। ये ग्रोह बड़ा ही खतरनाक है। इसने लाहौर में, पाकपतन में जो दरबार है, पाकपतन दरबार शरीफ, मुल्तान में, ये ज़्यादातर वर्क दरबारों के करीब करते हैं कि उधर मासूम बच्चियाँ आ जाती हैं अक्सर घर से लड़ झगड़ के, और उनको वर्गलाते हैं, कहीं को अगवा भी कर लेते हैं ये लोग। उनको वर्गलाने के बाद इनका अगला तरीकाकार होता है कि फौरन उसको लतीफ़ा के पास भेज देते हैं। पंजाब की दूध क्रॉस कर यदि वो सिंध में चले जाते हैं। जैसे सिंध में चले जाते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक अपने सूबा में वर्क करना, एक दीगर सूबा में करना। उसके लिए हमारे पास काफ़ी हर्डल्स है। हमें लेटर वगैरह जारी करवाने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है सिंध गवर्नमेंट से। दूसरा खैर वो एक प्रोसेस है, लेकिन उस पर आपने कंप्लीट किया है, बड़ी कामयाबी किया जाहिर है। वो कंप्लीट करने के बाद हमको कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन ये ग्रोह जो है इसका सबसे खतरनाक तरीका वारदात ये है कि ये बंदा जैसे ही बच्ची को उन्होंने पिक करना है 6-7 घंटे में सिंध में दाखिल हो जाते हैं।